Today we are going to do George-Gorin theorem. Okay, George-Gorin theorem says about the disk where the eigenvalues are lying. Okay, अब हम देखेंगे कि जॉर्ज-गोरिन थ्योरम का यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करें कि जो लैम्डा है यानी जो आइगन वैल्यूज है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है. सो लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A of order n such that Ax is equal to lambda x. It means the lambda is the eigenvalue and x is the eigenvector corresponding the eigenvalue lambda. So here of course A is the square matrix of order n. This is the matrix of order n. So first here we are finding the George-Gorin bound. For George-Gorin bound, the eigenvalue lambda, the absolute value of eigenvalue lambda is always less than n equal to the sum of absolute value of entries of elements in the kth row. That is sum of I varies from 1 to n aki, absolute value of aki. This is for the kth row. क्लियर है. सो इसको नाम दे देता हूं मैं rk, where rk is the this one. It means the sum of absolute value of entries in the kth row. सपोज rk1 है तो rk1 क्या होगा, sum of these absolute value. It means absolute value of a11 plus absolute value of a12 and so on. तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे. So it gives the rk. Okay, then इसमें क्या करेंगे, if max, अब हमने r1 r2 rk के लिए r1 r2 rk एंड so on rn के लिए हमने अगर फाइंड आउट कर लिया सारे rk, तो then we have to find the maximum of r1 r2 and so on rn. तो ये जो इनका मैक्सिमम जो नंबर आएगा वो नंबर हम यहाँ लिख लेंगे. सपोज दिस इज r. if max r, if the absolute value of lambda is less than equal to rk, where k is the kth row, then the absolute value of lambda will be always less than equal to r, because r is the max of this one. So lambda is less than equal to r. तो सिमिलरली मैं अब ये कॉलम के लिए करना है, हमें कॉलम के लिए करेंगे सेम यही प्रोसेस हम कॉलम के लिए करेंगे. तो सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ, सपोज जे आप ले सकते हैं, जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए जे के. ओके, अब k यहाँ पे आएगा यानी k जो होगा वो फिक्स होगा, यानी k जो होगा jth कॉलम पे यानी कॉलम की पोजीशन पे आ जाएगा. सो यहाँ पे jk बन जाएगा फॉर द kth कॉलम. ओके, वहाँ पे हमारा ck हो जाएगा
ओके, अब यहाँ पे आर के से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ हम सी के से डिनोट कर लेंगे फॉर द कॉलम. द सी के विल बी द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रीज इन द kth कॉलम. मीन्स अगर k इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a11 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a21 एंड सो ऑन प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an1. सो अगेन हम इसका मैक्स निकाल लेंगे, मैक्स ऑफ c1 c2 एंड सो ऑन cn कैपिटल C से डिनोट कर लेंगे. सो इफ मैक्स ऑफ c1 c2 and so on cn is equal to c, then absolute value of lambda is less than equal to c. Now the absolute value of lambda will be always less than equal to minimum of r comma c. Okay, this is called the George-Corin bound. Now for the George-Corin disk, the statement is given by the Brouwer's and named by the Brouwer's theorem. So this theorem is using for the finding the George-Corin disk. तो George-Corin disk हमें find out करना है with the help of the Brouwer's theorem. The statement is says the absolute value of lambda minus akk is always less than equal to summation of absolute value of aki, where I varies from 1 to n, but I cannot be equal to k. Already we take the element of kth row and kth column in this. ओके, तो हमें यहाँ पे k को I cannot be k करना है. सो इसको नाम दे देते हैं हम, सपोज वहाँ पे आर के कह रहे थे हम, चलो यहाँ पे पी के कर देते हैं. अब ये पी के क्या है, सम ऑफ absolute value of non-diagonal entry in the kth row. दिख रहा है, where pk is equal to this one. अगर आप इसको expand करके लिख रहे हो तो it gives the sum of absolute value of non-diagonal entries in, of course, kth row. So here this inequality gives the George-Corin disk. Okay, because the lambda lies within and on the circle of radius pk, so it gives a disk. Lambda, we can say here lambda lies within and on the circle centered at, which is centered at akk and radius pk. Okay, so this is nothing but the disk. So such disk is called, this one is called George-Corin disk, or we can say George-Corin circle. अगर हम एक ऐसा कलेक्शन बना ले पॉइंट्स का जो सर्किल के अंदर वाले पॉइंट भी ले रहे हैं हम, तो वो डिस्क बन जाएगा. सर्किल में तो केवल सर्कमफ्रेंस ही आएगा, अगर सर्किल कह रहा हूं तो ओनली उसका जो बाउंड्री है वही आएगा.
सो दिस इज कॉल्ड द जॉर्ज स्कोरिंग। और यहाँ पे मैं ये कहूँगा डायरेक्ट इसको डिस्क ना कह के सर्किल बोल देता हूँ, ठीक है। तो जॉर्ज स्कोरिंग डिस्क आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं जॉर्ज स्कोरिंग डिस्क की डिफाइन करूँ, जॉर्ज स्कोरिंग जो डिस्क होगा, जॉर्ज स्कोरिंग डिस्क अगर मैं डिफाइन करूँ तो आप उसमें लिख सकते हो दोज कॉम्प्लेक्स नंबर z minus akk is less than equal to pk. Okay, this is the Jauge scoring disk for the kth row. For k. So this is the Jauge scoring disk for the kth row. तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उसके थ्रू हम देखते हैं हाउ वी आइडेंटिफाई द जॉर्ज स्कोरिंग circle and or Jauge scoring bound. Suppose we have example of 3 cross 3 matrix 1 minus 1 2 minus 1 3 minus 1 2 minus 1 2. So first हमें क्या करना है, sum of absolute value of row, ठीक है। sum of absolute value of row means 1 plus absolute value of 1 1, absolute value of minus 1 of course 1, so absolute value of 2 is 2, so this is 4. okay, तो हम सम कर रहे हैं यहाँ पे, सम एब्सोल्यूट वैल्यू, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, सो दिस इज 4 आया, यहाँ पे 5 आ रहे हैं और यहाँ पे 5 आ रहे हैं। सो इनका मैक्स भी निकाल लेते हैं। मैक्स ऑफ दिस वन आर 5, ठीक है, मैक्सिमम 5 है। सिमिलरली कॉलम 1, absolute value of 1 is 1, absolute value of minus 1 is 1, absolute value of 2 is 2, so sum is 4. Similarly sum is 5, similarly sum is 5. So its maximum क्या आएगा भाई, 5 ही होगा। So now the Jauge scoring bound is given by modulus of lambda less than equal to minimum of this max comma this max, which is 5. So lambda, absolute value of lambda is less than equal to 5. okay, so this is called the Jauge scoring bound. okay, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -5 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 5, और इसको मैं इक्वेशन इनइक्वलिटी 1 कर देता हूं। नाउ बाय द ब्राउअर्स थ्योरम says absolute value of lambda minus akk is less than equal to pk, where pk is the sum of absolute value of non-diagonal entries in the kth row। अब देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्डा माइनस a11 क्या होगा, ठीक है, a k यहाँ पे रिपीटेशन है तो ये डायगोनल के एंट्री आएंगे। यहाँ पे a k इज लेस देन इक्वल टू p1, p1 इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सक्लूडिंग ये, तो डायगोनल को हटाना है और बाकी हमें ऐड करना है। सो दिस वन -1 2, तो ये क्या हुआ -1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, इट गिव्स द 3। सिंपल। सो वेयर हियर a11, व्हाट इज a11, lambda minus a11 is 1, तो a11 is 1, so this is 3। Similarly lambda minus 3 के लिए and lambda minus 2, तो lambda minus 3 के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना है with absolute value, of course this is 2, and lambda 2 के लिए इन दोनों को ऐड करना है with absolute value, so this is 3। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड दे आर कॉल्ड द Jauge scoring circle or disk। ओके,
So here, so lambda can be written as, अब ध्यान से देखना इसको, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ पे देखिए लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो -3 लैम्डा माइनस 1 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो 1 ऐड कर दो दोनों तरफ। सो लैम्डा लाइज बिटवीन -2 and 4। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे, फिर लैम्डा -1 + 1 लैम्डा 3 + 1, यहाँ +1 कर दिया। तो ये एक्चुअली लैम्डा पे मैं दिखा रहा हूँ ये क्या आएगा। सो दिस इज 4 और दिस वन इज -2। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको -2 लैम्डा लाइज बिटवीन -2 and 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा लाइज बिटवीन, ओके, तो -2 हो जाएगा इधर, तो 3 ऐड करेंगे। सो -2 और 3 1 and here 5। सो यहाँ पे -3 to 3 और 2 ऐड कर लेंगे, -1 to 5। ठीक है, इसको मैं इनइक्वालिटीज 2 कर देता हूँ। ठीक, एक इनइक्वालिटी 1 है और एक इनइक्वालिटी 2 है। तो लैम्डा की वैल्यू हम देख सकते हैं कहाँ से, -2 से 4 है, 1 से 5 है, -1 से 5 है। तो हम अब इसमें देखते हैं, वी आर टेकिंग हियर लार्जेस्ट इंटरवल वेयर लैम्डा लाइंग। ओके, ऐसा सबसे बड़ा इंटरवल जिसमें लैम्डा लाई करता हो, यानी ये सारे तीनों इनइक्वालिटीज में लैम्डा होल्ड हो जाता हूँ। तो वो देखना है, यानी इनका मैं यूनियन ले लेता हूँ। ठीक है, ये इंटरवल्स का यूनियन ले लेता हूँ। सो टेकिंग यूनियन ऑफ इक्वेशन 2 इनइक्वालिटीज 2, तो इनका यूनियन ये देखो। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो लोअर बाउंड है हमारा -2 है। ठीक है, -2 है और मैक्सिमम 5 है। सो जब हम इसका यूनियन ले तो ये इंक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली उसके अंदर, लैम्डा एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका ये जो यूनियन आया इस तरीके से आएगा 3। इसको इनइक्वालिटी 3 कर देते हैं। सो वी हैव इनइक्वालिटी 1, 2 and 3 by the George-Gorin bound. The lambda lies between -5 to 5, but by Brauer theorem it gives the -2 to 5, यानी इसने और रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, लोअर बाउंड को और छोटा कर दिया, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में और ज़्यादा आसानी हो कि लैम्डा कहाँ पे लाई करेगा। सो जस्ट वी आर इंटरसेक्टिंग 1 and 3। ओके, ऑफ कोर्स दिस इज द कोइंसाइड इन द 1, हम देख सकते हैं। तो दिस इज द मिनिमम इंटरवल, ये भी कह सकते हैं हम। सो यहाँ पे नाउ हमें इन दोनों का इंटरसेक्ट लेना है। सो वी कैन सी हियर ये -5 to 5 है और ये -2 to 5 है। सो दिस 3 इज लाइज इन द इनसाइड द 1। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आएगा -2 to 5। सो -2 to 5। So we can say here by the George-Gorin theorem, the all eigenvalues of matrix A lies between -2 and 5। आप इसका जॉर्ज-गोरिन टेक्निक के थ्रू आप बता देना कि उसकी आइगन वैल्यू कहाँ लाई करती है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आपके लिए, find the George-Gorin bound and circle, then find interval or disk
where eigenvalues are lying। तो आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। सो नेक्स्ट में हम करेंगे सिमिलर मैट्रिसेस एंड देन डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस।